Hello friends, welcome students. Today I have brought an important topic for you and the name of that topic is parts of speech. It is a basic grammar topic and you have to understand it before starting your grammar work. So this topic is very important, parts of speech. Students, you know that there are 8 parts of speech. You can see on the screen what are the 8 parts of speech. 8 parts of speech कौन कौन से होते हैं students? We can see them one by one now. First one is noun जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. Second one is pronoun जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. Third one is adjective जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं. Fourth one is verb जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. Fifth one is adverb जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. Sixth one is conjunction जिसे हम हिंदी में संयोजन कहते हैं. Seventh one is preposition जिसे हम संबंध सूचक कहते हैं. And the eighth one is interjection जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं. I again repeat all the 8 parts of speech which I have discussed with you just now. First one is noun, second one is pronoun, third one is adjective, fourth one is verb, fifth one is adverb, sixth one is conjunction, seventh is preposition, eighth is interjection. Now we shall study all these 8 parts of speech in brief. Students, as you see on the screen, the first part of speech is noun. You can also see 2 pictures on the screen which I will tell you later. First of all, look at the definition of noun. A noun is a person, place, thing or idea. तो स्टूडेंट्स आप जैसे देख रहे हैं डेफिनेशन नाउन की कि नाउन एक पर्सन है, प्लेस है, थिंग है और आइडिया है. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. सेकंड आप देख रहे हैं नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. जो नाउन्स होते हैं जिसे मैंने बताया कि संज्ञा कहते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स वाक्य का कर्ता होते हैं. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स. सी द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज शालिनी इज ए प्रो गोल्फर. शालिनी एक प्रो गोल्फर है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं. सी द सेकंड एग्जाम्पल. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. जो हंसी है वो सबसे बेहतरीन दवा है. तो लाफ्टर मीन्स हंसी जो एक सबसे बेहतरीन दवा है. आप देख रहे हैं यहाँ पर लाफ्टर की पिक्चर. तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि लाफ्टर जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर, और शालिनी जो था जो हमने पिछले सेंटेंस में डिस्कस किया था वो प्रॉपर नाउन है. तो शालिनी इज अ प्रो गोल्फर. शालिनी हियर इज सब्जेक्ट. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर that nouns are the subject of a sentence. That means Shalini is a subject here and Shalini is a proper noun. See the second sentence again. Laughter is the best medicine. Laughter here is the subject of a sentence. Laughter is the noun and laughter is abstract noun. We shall discuss the types of noun in a separate chapter of nouns. Here we are discussing the parts of speech only in brief. I am giving you only a brief idea about the parts of speech. See the second type of parts of speech and that is pronouns जिसे हम सर्वनाम कहते हैं. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronoun एक ऐसा शब्द है जो नाउन की प्लेस लेता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. आई, मी, माई, यू, योर, ही, शी, इट, अस, वी, दे, देम, हिज, हर, देयर, माइन, आवर, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, itself, yourself, themselves, ourselves, who, whose, whom, anybody,
anyone, everybody, nobody, someone, somebody. All these are pronouns, students. These are various types of pronouns. Types of pronouns we will discuss in the topic pronouns and its types. We will also discuss about the first person pronoun, second person pronoun, third person pronoun. Here I am giving you only a brief idea about the pronouns. See the example. Mohit is a student. He reads in class 9th. मोहित एक विद्यार्थी है, वो कक्षा 9 में पढ़ता है। फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मोहित इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर मोहित जो है वो नाउन है, और इसके आगे हम जो सेंटेंस देख रहे हैं ही रीड्स इन क्लास 9th, यहाँ पर जो ही है वो प्रोनाउन है। तो बजाय हमने दोबारा मोहित का इस्तेमाल करने के, यूज करने के, हमने प्रोनाउन ही को यूज किया, और ही यहाँ पर जो है वो मोहित के लिए यूज हुआ है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो है वो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बार बार हमें नाउन्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ही से हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ ही जो है वो मोहित को ही रेफर कर रहा है। तो जब पहले हमने लिखा मोहित इज ए स्टूडेंट, तो मोहित यहाँ पर नाउन है। फिर हमने मोहित को ही रेफर करते हुए सेंटेंस के बारे में आगे बताया कि वह कक्षा 9वीं में पढ़ता है। बजाय हमने ये लिखने की कि दोबारा से मोहित रीड्स इन क्लास 9th, हमने लिख दिया ही रीड्स इन क्लास 9th, और ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, और ही जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस। आई नो सुधा, शी नोज मी। मैं सुधा को जानता हूँ, वह मुझे जानती है। तो स्टूडेंट्स, लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, हियर आल्सो इंस्टेड ऑफ सुधा नाउन वी हैव यूज्ड शी प्रोनाउन। शी यहाँ पर प्रोनाउन है। दोबारा नाउन का इस्तेमाल करने के बजाय हमने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर दिया, और शी से अभिप्राय सुधा से ही है। नाउ आवर थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसे हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? विशेषण। हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द टू पिक्चर्स। फर्स्ट वन इज ऑफ ब्लैक डॉग and second one is fat man. You can see that the color of dog is black, that's why we have called it black dog, and you can also see a fat man. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता काला है, और डॉग जो इसे मैंने आपको बताया कि नाउन है, तो नाउन की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, काला है। तो ब्लैक यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं फैट मैन। मैन की विशेषता बताई जा रही है कि जो मैन है वो कैसा है, वो मोटा है, फैट है। तो यहाँ पर मैन की विशेषता फैट है, मोटा है, तो फैट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ फिर से कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन के अर्थों में कुछ जोड़ता है या इन्हें स्पष्ट करता है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। जब भी एडजेक्टिव में हमें लगे कि ये बताता है व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन, तो हमें ये क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में आ जाएंगे, व्हाट काइंड, हाउ मैनी or which one, then we can clearly understand that it is an adjective. Here are the examples that I have already told you. Anil is a fat man. Suppose a sentence comes in your examination, Anil is a fat man, and you have to find out an adjective, or you have to underline an adjective, then you can easily find out the adjective here. आदमी कैसा है? मोटा है, फैट है। मैन की विशेषता क्या है? कि वो फैट है, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे फैट को। फैट आपका एडजेक्टिव है। सेकंड वन, आई सॉ ए ब्लैक डॉग। मैंने एक काला कुत्ता देखा। कैसा कुत्ता देखा? काला। तो ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि फैट और ब्लैक जो है वो आपके एडजेक्टिव हैं, जो कि नाउन की विशेषता बता रहे हैं।
Our fourth part of speech is verb. Verb क्रिया. A verb is the action of the sentence. Verb जो है वो वाक्य का action है, क्रिया है. It shows what someone or something is doing. यह दर्शाता है कि कोई क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, जो वर्ब है वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को व्यक्त करते हैं. फिर बता देता हूं आपको मैं, वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को व्यक्त करते हैं. See in the first picture you see that the man is running. तो रन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हुआ, वर्ब. सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं अ गर्ल इज रीडिंग, एक लड़की पढ़ रही है. रीड आप लिखा हुआ है यहाँ पर, रीड भी आपका वर्ब है, क्रिया है. तो रन और जो रीड है ये आपके दोनों वर्ब हैं. आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि एक्शन चल रहा है. पहले पिक्चर में एक्शन हो रहा है रनिंग का और सेकंड पिक्चर में एक्शन हो रहा है रीडिंग का. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. द बॉय ब्रोक द चेयर. लड़के ने कुर्सी तोड़ी. अब पूछा जाए आपसे विच वन इज द वर्ब, एक्शन कौन सा है, कुर्सी को तोड़ने का. तो तोड़ना जो है वो आपका यहाँ पर एक्शन है. तो ब्रोक को आप अंडरलाइन करेंगे, ब्रोक यहाँ पर आपका वर्ब है. मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब की जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है ब्रोक, इसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रेक होती है, सेकंड फॉर्म है ही ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन. तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. सी द सेकंड सेंटेंस. द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस. चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया. अब एक्शन है पकड़ना. आप देख सकते हैं कॉट, कॉट आपका वर्ब है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कॉट को. और कॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसकी फर्स्ट फॉर्म कैच होती है और कॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. तो कैच, कॉट, कॉट. You have seen in both the sentences that broke and caught are the second form of the verb. Now, fifth part of speech, that is adverb. First of all, you see the definition of an adverb. An adverb describes how the action is performed. Adverb हमें ये बताता है कि एक्शन को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है. एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज जो है वो हाउ मच, हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर की जा रही है. तो जब भी हाउ मच की बात आए, हाउ ऑफन की बात आए, व्हेन की बात आए और वेयर की बात आए तो उसे हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एडवर्ब है. आप देखें एग्जाम्पल में, एंड द सेंटेंस इज रिटन हियर. द फिश जम्प्ड क्विकली फ्रॉम द वाटर. मछली जल्दी से पानी में से उछली. तो आप देख सकते हैं कि जंप के बाद क्विकली का यूज हुआ है. जंप आपका वर्ब है. जंप क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्या जल्दी से कूदी. तो क्विकली जो है यहाँ पर आपका एडवर्ब है और यहाँ पर जो एडवर्ब है वो आप देख रहे हैं कि वर्ब की जो है विशेषता बता रहा है यहाँ पर कि भाई द फिश जम्प्ड क्विकली फ्रॉम द वाटर. मछली पानी से कैसे उछली, जल्दी से उछली. तो जल्दी से यहाँ पर क्या है आपका एडवर्ब. सी द एग्जाम्पल्स. सुनील वॉक्ड स्लोली. सुनील धीरे चलता है. तो वॉक्स वर्ब हो गया. वर्ब की विशेषता क्या होगी, स्लोली. कैसे चलता है, स्लोली चलता है. तो स्लोली आपका एडवर्ब है. इफ अ सेंटेंस कम्स इन द एग्जामिनेशन, सुनील वॉक स्लोली, एंड you are asked to find out an adverb, then you can easily find out that slowly is an adverb. सुनील walks slowly, सुनील धीरे चलता है. तो यहाँ पर जो आपका एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है.
सी द सेकंड सेंटेंस, सीता इज वेरी हैप्पी। सीता बहुत खुश है, सीता बहुत ही प्रसन्न है। तो यहाँ पर आपका जो वेरी है वो आपका एडवर्ब है और ये जो है एडजेक्टिव हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है। हैप्पी जो आपका एडजेक्टिव है उसको क्वालिफाई कर रहा है कि एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है और यह वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another word, as you have seen that in the first sentence slowly is an adverb and it modifies the verb walks. In the second sentence Sita is very happy, तो यहाँ पर जो happy है वो adjective है और very आपका adverb है और ये क्या कर रहा है यहाँ पर एडवर्ब आपका वो हैप्पी एडजेक्टिव जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो एक मॉडिफाइंग वर्ड होता है। तो एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कंजंक्शन, दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम संयोजन कहते हैं। कंजंक्शन को क्या कहेंगे हिंदी में? संयोजन। A conjunction is a word that joins words or word groups together. संयोजन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को या शब्द समूहों को इकट्ठे जोड़ता है। कंजंक्शन जिसे हम संयोजन कहते हैं एक ऐसा शब्द है जो शब्दों या शब्द समूहों को इकट्ठे जोड़ता है। Some examples of conjunctions are and, but, or, nor, although, yet, so, either and also. All these are conjunctions. इनके बारे में डिटेल में हम कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। See the examples of conjunctions. मोहन is wise and sincere. मोहन बुद्धिमान और सच्चा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि वह वाइज भी है और सिंसियर भी है। टू वर्ड्स वाइज एंड सिंसियर आर ज्वाइंड बाय द कंजंक्शन एंड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कंजंक्शन एंड जो है वो दो शब्दों वाइज और सिंसियर को आपस में जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन फाइंड आउट की बात आ जाए यहाँ पर तो एंड आपका कंजंक्शन है। सी द सेकंड सेंटेंस, आई शैल आइदर रीड और राइट अ बुक। कि मैं या तो पुस्तक पढ़ूंगा या लिखूंगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, आइदर रीड और राइट अ बुक। तो यहाँ पर आइदर और आपके दोनों कंजंक्शन है और एक ही वाक्य में यहाँ पर आइदर और का यूज हुआ है। तो ये आइदर और जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इनको हम क्या कहेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। दोनों एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। जैसे आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इन सब के टाइप के बारे में जो है आपको कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बस आपको सिर्फ यहाँ पर कंजंक्शन की पहचान बताई जा रही है। तो इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे फर्स्ट में एंड कंजंक्शन है और सेकंड में आपका आइदर और कंजंक्शन है। Now our next part of speech is preposition. Preposition जिसे हम कहते हैं पूर्व सर्ग या संबंध सूचक। A preposition is a word that shows position or direction. एक preposition एक ऐसा शब्द होता है जो कि स्थिति या दिशा को दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल्स preposition के हैं, in, out, under, over, after, out, into, up, down, for and between। तो ये जो preposition है in, out, under, over, after, out, into, up, down, for and between, ये आपके सारे preposition हैं। preposition
जो आप देख रहे हैं इनका यूज कैसे होता है, इनके रूल्स क्या क्या हैं, वो हम सेपरेटली प्रेपोजिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, you see in the first picture that a girl named Seema is working at her desk. See the sentence now. Seema works at her desk. सीमा अपनी मेज पर काम कर रही है। तो यहाँ पर एट जो है वो पर के लिए यहाँ पर यूज हुआ है और डेस्क पर काम कर रही है, तो एट यहाँ पर आपका क्या हुआ, प्रेपोजिशन। सीमा वर्क्स एट हर डेस्क, सीमा अपनी मेज पर काम करती है, तो पोजीशन की बात की जा रही है और एट यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द सन इज इन द स्काई, सन जो है वो स्काई में है, सन की पोजीशन की बात की जा रही है, सन की डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो इन यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन है। नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशन। कृष्णा इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, कृष्णा इंतजार की वजह से थक गई है। तो यहाँ पर किस कारण से थक गई है, इंतजार करने की वजह से। तो आपको मैंने बताया था प्रेपोजिशन के बारे में। अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आ जाता है कृष्णा इज टायर्ड ऑफ वेटिंग और आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द प्रेपोजिशन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेपोजिशन है ऑफ, और टायर्ड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। सी द सेकंड सेंटेंस, द ट्रेन पासिस थ्रू अ लॉन्ग टनल, गाड़ी जो है वो एक लंबी सुरंग में से गुजरती है। तो यहाँ पर में से के लिए जो है वो थ्रू का यूज हुआ है, तो थ्रू यहाँ पर आपका क्या हुआ, प्रेपोजिशन। नाउ वी कम टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में बेसमयादी बोधक कहते हैं। वाव, सुपर्ब, ये दोनों इंटरजेक्शन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इंटरजेक्शन की पहचान कैसे होगी। जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिले उस वर्ड के बाद, तो वो वर्ड इंटरजेक्शन कहलाता है। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड that shows strong emotion. Such examples are wow, ouch, hooray, and oh no. इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता है। तो ये ऐसा शब्द है जो मन में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक एवं उत्तेजक भावों को प्रकट करता है। तो जब ऐसी चीज होती है तो डेफिनेटली कि इंटरजेक्शन जो है वो वाक्य में जोश ला देते हैं, जो कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। इंटरजेक्शन कैन रियली लाइवन अप ए सेंटेंस। इंटरजेक्शंस जो विस्मयादि बोधक होते हैं वो वाक्य में जान ला देते हैं, वाक्य में जोश ला देते हैं। और जो आप ये वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर वो, सुपर्ब, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाते हैं। Now see the examples. Bravo, India won the match. Bravo, good done, very well done. ब्रावो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वाहवाही के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। आप देख रहे हैं कि ब्रावो के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ब्रावो यहाँ पर इंटरजेक्शन है। एग्जाम में सेंटेंस आ जाए ब्रावो, इंडिया वॉन द मैच, फाइंड आउट द इंटरजेक्शन, तो आप इंटरजेक्शन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ब्रावो को अंडरलाइन कर देंगे और ब्रावो के बाद जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन है, दैट मीन्स वेल डन। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप देख रहे हैं कि ओ कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही सरप्राइज को शो किया जा रहा है, अमेजिंग थिंग को शो किया जा रहा है कि कितनी सुंदर लड़की है वह। ओ आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, सरप्राइज व्यक्त की जा रही है, हैरानी व्यक्त की जा रही है। तो इस सेंटेंस में आपका जो ओ है
वो इंटरजेक्शन है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस ब्रेवो आपका इंटरजेक्शन है, सेकंड सेंटेंस में ऊ आपका इंटरजेक्शन है। सो स्टूडेंट्स, we have discussed 8 parts of speech. All these we have discussed in brief. We shall discuss each and every part of speech in our next videos one by one. Thanks for watching. Do like, share and comment on this video. Subscribe to our channel and also press the bell icon to get updates of future videos. Thank you.